આ શિબિર આ શિબિરમાં અમારે આજે જવાનું છે, એટલે થોડી વાતો શેર કરું છું. પહેલાં તો અહીંના જે આખી ટીમ છે એ ખૂબ જ કોઓપરેટિવ અને હસીને આપણી બધી જ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. એમને તો એક ધન્યવાદ આપું છું અને આભાર માનું છું. બધી જ બાબતોમાં એકદમ કોઓપરેટિવ અને એકદમ હેલ્પફુલ છે. બીજું કે આ શિબિરનું વાતાવરણ એટલું બધું સારું છે કે જવાની ઈચ્છા થતી નથી, અને વારંવાર આવી શિબિરો થતી રહે તો આપણું જે સ્પિરિચ્યુઅલ રિચાર્જ છે, આપણે કેમ મોબાઈલનું રિચાર્જ કરીએ છીએ એમ આપણા મનનું, જીવનનું, આત્માનું રિચાર્જ પણ આવી શિબિરોથી થતું રહે છે. બીજું, શ્રીરામ ભૈયા આપણને આમ લાગે છે, પણ મને એવું લાગે છે કે અંદરથી સંત છે. ભલે ને ભગવા કપડાં પહેરેલા નથી, પણ સંતમાં જેટલી સહજતા, એમને જ્ઞાન એટલું છે, પણ જ્ઞાનનું જરા પણ એને પેલું નથી, અભિમાન જેવું નથી, અને ખૂબ જ સરળતાથી હસીને નાની નાની જીવનની વાતોને એવી રીતે આપણને સમજાવે છે કે આપણે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. હવે માનો કે જીવનની જે વાતો શ્રીરામ ભૈયા, શ્યામ ભૈયા આપણને શીખવાડે છે, એ જ વસ્તુ માનો કે કોઈ કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં હોય અને આનું નોલેજ એટલું ડિટેલમાં હોય તો એની કિંમત કલાકના 1 લાખ રૂપિયા જેટલી થાય. આટલું ડિટેલમાં આપણને ફ્રીમાં શીખવાડે છે. એટલે એ આપણા જીવન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને આ વસ્તુ એવી છે કે એ આપણી સાથે કાયમ રહે છે. શિબિરમાં આવતા પહેલાં આપણી જાગૃતિનું જે એક લેવલ હોય છે, પછી એવું લાગે છે કે એ લેવલમાં થોડો વધારો થયો છે. એ વધારો છે કાયમી રહે છે. એટલે આવી શિબિરોથી આપણે એક બે પગથિયાં આપણા જાગૃતિના લેવલ સુધી પહોંચીએ છીએ. એટલે આપણું પૂર્ણતાનું જે ધ્યેય છે એમાં આવી શિબિરો અને આવા વક્તાઓનો આપણા જીવનમાં ખૂબ જ ફાળો છે. આપણી પૂર્ણતાની યાત્રામાં એ ખૂબ જ આપણને મદદરૂપ કરે છે. બીજું કે આજની શિબિરમાં સંબંધો ઉપર વધુમાં વધુ ધ્યાન આપવામાં આવેલું છે. જે આપણે મેરેજ કરીએ છીએ ત્યારે લાખો રૂપિયાનો રિસેપ્શનમાં, ફર્નિચરમાં, દાગીનાઓમાં ખર્ચ કરીએ છીએ, છતાં ભવિષ્યમાં એવું થઈ શકે કે આપણે જે રિઝ્યુમ બનાવીએ, છોકરાઓનો બાયોડેટા બનાવીએ, તો એમાં એવું એક સેન્ટેન્સ લખી શકાય કે જીવન વિદ્યાની શિબિર કરેલી છે. અથવા તો કોઈ નોકરીમાં ઇન્ટરવ્યૂ દઈએ ત્યારે આપણી ડિગ્રી, આપણું એક્સપિરિયન્સ, ક્વોલિફિકેશન બધું લખતા હોઈએ, એ ભૌતિક વસ્તુઓને લગતું હોય છે. એમાં પણ આપણે એવું એક લાઈન એડ કરી શકીએ કે જીવન વિદ્યાનો કોર્સ કરેલો છે. ભવિષ્યમાં એવું બની શકે કે આ પ્રકારની લાયકાતને પ્રથમ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે. તમે કેટલા ટકા માર્ક મેળવ્યા છે, કેટલી ડિગ્રી છે, કેટલું એક્સપિરિયન્સ છે, એના કરતાં જીવન વિશેનું જ્ઞાન, એને જે સ્ટાફની અંદર બધા ફિલ્ડ પ્રોબ્લેમ થતા હોય એને સોલ્વ કરવામાં ઘણું બધું ઉપયોગી થાય છે. અને કોર્પોરેટના પ્રોબ્લેમ્સ પણ આવી વસ્તુથી થાય છે, અને આવી વસ્તુથી સોલ્વ થઈ શકે છે. બીજું, વિદ્યાર્થીઓને અને યુવાઓને આજની તારીખમાં એક ખાસ જીવન વિદ્યા તરફથી મળે છે કે આજના આપણા જે આઇકોન છે, ફિલ્મી સ્ટારો છે, પછી જે ખેલાડી ક્રિકેટર્સ છે, એ બની ગયા છે. એ આપણા ફોલ્સ ફેક આઇડલ્સ છે, એને દૂર કરી અને આ ટાઈપના આઇડલ્સ આપણા જીવનમાં આવે તો આપણી જીવનમાં જાગૃતિનું લેવલ ખૂબ જ વધે. એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે બીજું, આ જે કોર્સ છે એ આપણા આત્માના પોષણ માટે છે. શરીરના પોષણ માટે આપણે બધું કરીએ છીએ, પણ આત્માના પોષણ માટે, આત્માના સંવર્ધન માટે આ એટલું બધું ઉપયોગી છે કે જેની આપણે અત્યારે કિંમત સમજાતી નથી, પણ ભવિષ્યમાં આ વસ્તુ બહુ જ સમજાશે. આપણે આપણા કોઈ વ્યક્તિ એવું કહી શકે કે ફેમિલી મેમ્બરને આપણને છોકરો કહેતો હોય કે બાઇક આપો, તો એક શરત રાખી શકાય, પણ તું જીવન વિદ્યાનો કોર્સ કરી દે પછી તને બાઇકની ચાવી આપીશ, એવું પણ થઈ શકે. કોઈ પણ ગિફ્ટ આપતા પહેલાં આ પણ થઈ શકે. બીજું, મેં અમારા ગ્રુપમાં કાલે વાત કરી હતી કે આપણો જન્મદિવસ ઉજવતા હોઈએ છીએ, તો જન્મદિવસ ઉજવતી વખતે આપણે કેક કાપીએ, બધી શણગાર કરીએ, પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે આવતો જન્મદિવસ આવે ત્યાં સુધીમાં મારા અત્યારના જાગૃતિના લેવલ કરતાં મારું જાગૃતિનું લેવલ વધુ આવે ને મારો એક પુનર્જન્મ થાય, એવું આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈ શકીએ. હા, બરાબર. આ જીવન વિદ્યામાં 2017 આસપાસથી જોડાયેલ છે. એ પણ આત્મીય કોલેજમાં અમારા જમાઈ ભાઈ કાલરિયા મારફત ત્યાંથી શરૂ કરેલી. એમાં સારો એવો અનુભવ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણા જીવનમાં જીવવા માટે તેમજ સામનેવાળાને સમજવા માટે ઘણી ઉપયોગી
તો આપણા વ્યવહારમાં પણ આપણે વ્યવસ્થિત આગળ ત્યારું સમસ્યા વગર નિભાવી શકશું. नमस्कार. सबसे पहले हमारे प्रबोधक श्याम भैया, उसके बाद यहाँ के आयोजक संयोजक जो भी मिले, गिरीश भाई, सतीश भाई और एंजल परिवार पूरा जो प्रतिभागी भी है और कार्यकर्ता भी है, संयोजक भी है, और जो किचन में काम करने वाले हैं, जो हमारा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए, और मेरा एक सुझाव है कि जैसे हम कुछ उनके लिए भी कंट्रीब्यूट करें तो देना चाहिए, तो वो अलग बात है. शिविर की बात करें तो जीवन विद्या हम लोग करजत के शिविर में जा रहे हैं, इसलिए आज निकल रहे हैं. तो ये मेरी 7वीं शिविर है. 2 सोम भैया की करी, एक महेंद्र भैया की करी विसनगर में, और तालेगढ़ में मैं पर्सनली 3 दिन रह के आया. वहाँ से भी कुछ शिक्षक आए हैं, वहाँ मिलन हुआ, और वो भी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, और अरस परस आपका आदान प्रदान होना चाहिए. परेश भाई कलसरिया, और वहाँ भी कुछ सीखने जैसा है स्कूल के संचालन के लिए. और जैसे वहाँ के शिक्षक आए, वहाँ भी कोई शिविर हो तो आप किसी को भेज सकते हैं. तो मैंने अभी बात चल रही थी संबंधों की, और जीवन विद्या में कैसे संबंधों को सुलझाते हैं, कैसे संबंधों की बात की. तो अभी अभी लिखा कि कटहरे में तुम हो, कटहरे में मैं भी हूँ. विटनेस बॉक्स कटहरा याने પેલું ન્યાયાધીશની સામે હોય ને એક પાંજરું, તો એમાં આપણે દરેક બીજાને મૂકીએ છીએ, પણ આપણે પણ એમ જ છીએ. વિટનેસમાં કંઈ 2 પાર્ટી હોય અને વકાલત આપણે કરીએ છીએ. વકાલત वकालत तो कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स तो कर लेंगे श्याम भाई, पर विवेक कहाँ है, जज कहाँ है? तो हम खुद ही जज बनते, बीच में कोई और, दोनों के बीच में कोई और भी जज होना चाहिए. हमारा विवेक कि मैं ही गलत हूँ और दूसरा सही है. इस पर से मुझे निरंजन भगत की कविता याद आती है, और काड़नी केड़ी उसका नाम है. काड़नी केड़ी ये घड़ी करे भाई, विदाई गीत है ऐसे, और हम विदाई ले रहे हैं. तो काड़नी केड़ी ये घड़ी करे भाई, घड़ी का आपनो संग, आत्म ने तो ये जन्मो जन्म लागी जैसे एनो रंग. तुम्हारा मिलना तभी सार्थक है कि आत्मा रंग जाए पूरी तरह से जन्मों जन्म के लिए. तो धरती आंगण मानवी ना आ घड़क घड़ीक मिलन मेला. एक मिलन मेला है, एक समारंभ है, एक शिविर है, तो 4-5 दिन के है, पर तोय भीलूसू, इसकी जो मेमोरी है वो आजीवन रहने वाली है. और वो कहते हैं कि कैसे कैसे जीता जा सकता है श्याम भाई. एक बीजा ने जीतसू रे भाई, जात ने जसू हारी. अगर मुझे आपको जीतना है तो मेरी हारने की तैयारी है. आई हैव टू एक्सेप्ट माई. तो जादू है वो ही कहीं कहता है कि जादू है वो जाए जड़ी, कि चाही सकूं गाई सकूं बेचार कड़ी. तो गीत प्रेमनु पृथ्वी ना आ कर्ण पटे धरवा આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. હું ક્યાં કે માર કામ તમારું કે મારું કરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. અને આ પથ પરથી મધુર હવા, એન્જલની આજુબાજુ પણ આ પથ પરથી મધુર હવાને ચહેરા ચમકે નવા નવા. અને અહીંયા તો લેડીઝનો સ્ટાફ છે, એટલે મારી વાઈફ જોયા જ કરતી હોય કે કોણ ફેશિયલ કરાવીને આવી છે ને કોના વાળમાં બોટોક્સ કરેલું છે. આ પથ પરથી મધુર હવાને ચહેરા ચમકે નવા નવા. આપણે વાત કરીને જવું ને પાછો ઘેર જવા. શિબિર છોડવાનું મન નથી થતું, પણ મોટી શિબિર અથવા સારી શિબિર હશે એવી કલ્પના કરીને आशावाद में जा रहे हैं. वहाँ कौन प्रबोधक है? श्री राम भैया. श्री राम भैया. हाँ, तो मैं तो जितने प्रबोधक में से एक से बढ़िया एक है. मैं सोच रहा था कि अभी महेंद्र भैया क्या बोलेंगे. श्याम भाई को सुन लिया तो महेंद्र भैया की एक अलग खुशबू है, श्याम भैया की एक अलग खुशबू है, और अपने है और नहीं, मेरे साथ वहाँ श्याम भैया के साथ थे जो हरिद्वार के संयोजक है. हाँ, सोम भैया के साथ एक थे, हाँ राजेश भाई, उसकी भी अलग समझ है. और हापुड़ में कितने लोग हापुड़ से आए थे, तो मेरा तो सर चकरा गया कि इसमें पीएचडी करने जैसा है. और मैंने वहाँ कहा कि अगर 3 साल पहले अगर मुझे जीवन विद्या मिलती तो मैं पीएचडी कर देता.
और ओपन मंच से पूरी शिविर में से सोम भैया ने मुझे बोला कि आप हापुड़ में 3 महीने के लिए तो आइए ही आइए। तो मैंने सभी को, या गर्व की बात है ना कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से एक को ही उन्होंने चुना, हालांकि वहाँ हापुड़ में किए हुए लोग थे, कि आप हापुड़ आओ। जैसे सुरेश भैया ने पहली शिविर में ही कहा, मेरा इंटरेक्शन रिएक्शन जो भी बोलो, कि आपको मैं निमणूक दे देता हूँ, अपॉइंटमेंट, और मैं ट्रस्टी मंडल में हूँ। ये कुछ नहीं बोलेंगे गिरीश भाई, सुरेश भाई, आप बिना वेतन के प्राध्यापक हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं तो बोलने वाला आदमी हूँ, बोलते रहता हूँ, अभिव्यक्ति करना जैसे इनका स्वभाव है। तो किसी ने मुझे कहा भी, अभी अभी भी कहा, और 2-4 लोगों ने कहा कि एक सेशन आपके लिए भी रखना चाहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मारू नाम भावना है, हूँ अमदावाद थी। श्याम भैया को नमस्ते। सबको पहली बार तुम्हारी शिविर मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा, सभी के साथ अच्छा लगा। नैना बेन के घर हम रुके, वहाँ भी हमको बहुत प्यार मिला। सभी को नमस्ते। आवाज़ ठीक है पीछे? तो हम लोगों ने पहले दिन जो चर्चा को शुरू किया था, तो ये बात की थी कि अंततोगत्वा हम मानव को, परिवार को, समाज को और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जो समय सीमा है अपने पास उसमें। तो पिछले 1.5 दिनों से, लगभग हम लोग 1.5-2 दिनों से परिवार में व्यवस्था को थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे थे, उसको विस्तार कर रहे थे। इस सेशन में थोड़ा समाज के बारे में, जो समय है अपने पास 35 मिनट्स का अप्रॉक्स, थोड़ी समाज पर चर्चा को शुरू करते हैं। समाज, प्रकृति और अस्तित्व, इस चर्चा को बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि समय की सीमा है और उसी समय में होना है। और लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको मैं एक सेशन लगा करके थोड़ा विस्तार से कल सुबह बता देना चाहता हूँ कि लौट करके आप घर जाके क्या करें। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी चर्चा में, किसी वर्कशॉप में, शिविर में पार्टिसिपेट करते हैं ना, कुछ बातें हमारे ध्यान में आती हैं, समझने का एक अंकुर निकलता है बीज में से। लेकिन अगर उसको संभालने का काम नहीं करेंगे, उसको खाद पानी देने का काम नहीं करेंगे, उसको पर्याप्त नर्चरिंग का, पोषण का काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो मुरझा के मर जाएगा। और वो मुरझा के मर जाने से 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो वो बीज बेकार गया, आगे अब दूसरा ही बीज डालना पड़ेगा, वो बीज तो गया। दूसरा क्या होता है कि कई बार वो घटना हमारे साथ घट जाती है ना, 2-4-5 बार, तो ये भरोसा उठना शुरू हो जाता है, ये विश्वास होना भी बंद हो जाता है कि इस प्रक्रिया से हम ठीक भी हो सकते हैं कि नहीं। तो आप बीज लगाना शुरू करते हैं, उसको फल काटने तक ले जाएंगे, तब तो उपलब्धि के रूप में कुछ मिलेगा। आप बढ़िया खेत जुताई करें, बीज भी बढ़िया डालें, अंकुर भी निकले, फसल भी आए, आप पानी मत दीजिए, एंड रिजल्ट कुछ भी हाथ में नहीं ले। नहीं, खरपतवार निकालने का काम नहीं करिए, वो सब हो जाए, लास्ट में फसल काट के संभालने का काम नहीं करिए। एक भी स्टेप आप उस पूरे लूप में से छोड़ देते हैं ना, तो जो अपेक्षित फल परिणाम मिलना था वो नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत और लग गई उसमें। तो ये 4 दिन 5 दिन का समय आप इसमें लगा रहे हैं, तो उपलब्धि के रूप में कुछ चीज़ें हाथ भी तो लगे, और जो लग रही है उसको संभाल करके हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बना सकें। तो कल सुबह हम उस पर थोड़ा बात करेंगे, पर आज जितना समय है उसमें हम सोचते हैं कि समाज, प्रकृति और अस्तित्व के थोड़े ग्लिम्सेस पर बात कर लें, और लौट करके जीवन क्रिया पर थोड़ी बात हमको करनी है, जो मैं करना चाहूँगा। तो समाज की जगह से देखेंगे ना, तो आप अपने से ही ये सवाल पूछ के देख सकते हैं, हमको समाधान स्वीकार होता है कि समस्या स्वीकार होती है? समाधान, ये समाधान हर व्यक्ति की ज़रूरत है, या कुछ व्यक्ति समाधानित समझदार हो जाएं, बाकी लोग बेवकूफ़ बने रहें तो चल जाएगा? ये दिखता है कि एक आदमी भी समस्याग्रस्त होगा
खुद दुखी और परेशान होगा, खुद दुखी और परेशान होगा, दूसरों की दुख और परेशानी का कारण बनेगा। अगर हमारा पड़ोसी बेवकूफ़ है, रात में उठ के पत्थर फेंकने ही वाला है हमारे छत के ऊपर, कितना भी उपाय हम कुछ कर लें वो रुकेगा नहीं। वही अगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ स्नेह महसूस करता है, संबंध महसूस करता है, हर सुख दुख में खड़ा हो सकता है हमारे साथ, हर ज़रूरत में हमको एक सपोर्टिंग सहयोगी हैंड मिला हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई रोज़ रोज़ सहयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन हमको सहयोग मिल जाए, उतने भर से ही हमारी आश्वस्ति हमेशा के लिए बनी रहती है कि जब भी कठिनाई होगी तो सहयोग मिल जाएगा। ज़रूरत साल में एक बार ही पड़ती है, 5 साल में एक बार ही पड़ती है, 10 साल में एक बार ही पड़ती है, लेकिन वो एक बार सहयोग मिल जाता है तो हम पूरे समय आश्वस्त रहते हैं कि हाँ भाई सपोर्ट है हमारे पास। उल्टा भी उतना ही सही है। गाली कोई साल में एक दिन देता है, ऊंची आवाज़ में बात कोई 15 दिन में एक दिन करता है, नालायकियत की बात कोई महीने में 2 दिन करता हो, लेकिन वो महीने में 2 दिन, साल में एक बार होने के बावजूद भी भय हमारे अंदर ऐसा बैठ जाता है कि जब वो नहीं भी कर रहा है तब भी हमको लगता है ये आदमी तो नालायक है, ये तो ऐसा ही कर सकता है। वो संभावना के तहत ही जो हम जी रहे होते हैं ना, वो हमारे सुख दुख को कई गुना बढ़ा देता है। तो एक दिन की ही समस्या हमको भयभीत कर देती है, एक दिन का ही सहयोग हमको हमेशा के लिए आश्वस्त कर देता है। तो अल्टीमेटली समाज का ठीक होना जरूरी दिखाई देता है कि हर व्यक्ति में वो समाधान हो सके, वो समझदारी हो सके। इसी तरह से समृद्धि को देखेंगे, आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि के भाव को देखेंगे। ये प्रोस्पेरिटी या समृद्धि भी हम में से हर मानव की आवश्यकता दिखाई देती है। हम में से एक आदमी नहीं है जो अभाव में जीना चाहे। ये समृद्धि को परिवार में इसलिए पहचान रहे हैं कि सब तरह के लोग, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो सभी की सुविधा की आवश्यकता पूरी हो पाती है। एक बच्चा जो आज के दिन उत्पादन नहीं कर पाता है क्योंकि उसको वो स्किल नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो समझ नहीं है, वो अभी उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसको भी आवश्यकता से अधिक सुविधा मिल पाती है। और एक बुजुर्ग माँ बाप जो कल के दिन उत्पादन बहुत कर सकते थे वो भी आज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, उनकी भी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो पाती है। और ये बुजुर्ग और बच्चे दोनों की सेवा की ज़रूरत भी पूरी हो पाती है। इसी के साथ साथ हम बड़े भी कभी रोगी हो गए, बीमार हो गए, अक्षम हैं, अशक्त हैं, तो परिवार के दूसरे लोगों से हमको सेवा वाला, सहयोग वाला भाग मिल पाता है। तो इसलिए समृद्धि को परिवार में पहचान रहे हैं। इस सहजता से वो परिवार में इंश्योर हो सकता है सुविधा और सेवा दोनों के रूप में। समाधान के साथ समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार होता है ना, तो समाज में परस्पर विश्वास का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण बनता है। तो नकारात्मक भाषा में कहेंगे तो भय से मुक्ति होती है, अभय का वातावरण बनता है। सकारात्मक भाषा में कहेंगे तो परस्परता में विश्वास का माहौल बनता है, विश्वास का वातावरण बनता है। तो निषेधात्मक भाषा में कहेंगे तो भय का अभाव या अभय। सकारात्मक भाषा में कहेंगे, विधेयात्मक भाषा में कहेंगे तो विश्वास। ये हमको समाज की आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है। हम लोग जो शुरू से ये बात कहते रहते हैं कि आज के दिन देखेंगे तो आज के दिन जो हमारा ज़्यादातर भय है, वो भय कोई हिंसक पशुओं का भय नहीं है, शेर बाघ का भय नहीं है। आज के दिन हमारा ज़्यादातर भय मनुष्य के अमानवीय व्यवहार का भय। हमारा बच्चा शाम को घर नहीं लौटता है, मनुष्य के अमानवीय व्यवहार की चिंता होती। हम बाज़ार में मार्केटिंग करने जाएं, कोई ठग न ले हमको, इस बात की चिंता शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, भय और परेशानी शुरू हो जाती है। ये मनुष्य के अमानवीय व्यवहार का भय। बाहर निकलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, रोड पर
हमको हर सामान की सुरक्षा करके रखनी पड़ती है, एक एक सामान पर नज़र बना के रखना पड़ता है। ये मनुष्य के अमानवीय व्यवहार का भय। तो ये दिखता है कि अल्टीमेटली चाहते तो हम समाज में अभय हैं, और मनुष्य अगर समाधान समृद्धि के साथ जीना शुरू करे, बहुत स्वाभाविक रूप से अभय का वातावरण बनता है। हम समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, दूसरी भाषा में कहें सुख और समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, तो दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी होते ही हैं, क्योंकि जो हमारे पास है हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को दे पाते हैं। तो समाधान पूर्वक जीते हुए हम अपने में सुख शांति को महसूस करते हैं, उसके साथ हम समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं, तो हम दूसरों की सुख समृद्धि में भी सहयोगी हो पाते हैं, करने की जगह पर भी। मूल चाहने की जगह पर तो हम दूसरों का सुख समृद्धि चाहते हैं, करने की जगह पर हम कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते। जितना हम अपने में समाधान से सुख शांति को और समृद्धि को सुनिश्चित कर पाते हैं, उतना करने की जगह पर भी हम दूसरों के लिए सुख समृद्धि में सहयोगी हो पाते हैं। इस आधार पर सिर्फ दूसरे मनुष्य की चाहना के ऊपर ही हमारा विश्वास नहीं होता है, करने के ऊपर भी भरोसा हो जाता है, योग्यता के ऊपर भी भरोसा हो जाता है कि हाँ आप हमारा सहयोग कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये भरोसा बन जाता है। तो चाहने पर विश्वास तो समझ से ही आ जाता है। मानव मूलतः सुख समृद्धि चाहता है, ये विश्वास ये भरोसा तो हमको स्वयं के अध्ययन से समझने से आ जाता है। लेकिन हर मानव जब समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी होता है, तो करने पर भी विश्वास हो जाता है, योग्यता पर भी विश्वास हो जाता है कि हाँ आप हमको सुखी समृद्ध करने में सहयोगी हो पा रहे हैं। समाज में अभय के साथ विश्वास के साथ जो अगला मुद्दा है, वो इस पूरे प्रकृति के साथ अस्तित्व में हम परस्पर पूरकता का, एक दूसरे के लिए इनरिचिंग होने का, सहयोगी होने का, पूरक होने का निर्वाह कर पाते हैं। बाकी प्रकृति, हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब तो हमारे लिए पहले से ही पूरक है, पहले से ही सहयोगी। आदमी समझ करके इनके साथ पूरक होने लगता है, तो प्रकृति में परस्पर पूरकता, अस्तित्व में सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। सहअस्तित्व का अर्थ है साथ साथ होना और एक दूसरे के लिए पूरक होना। तो मानव की परस्परता में सहअस्तित्व को जीने से अभय हो जाता है, विश्वास हो जाता है। मानव की परस्परता में एक दूसरे के लिए पूरक होने से हमारा अभय और विश्वास का माहौल हो जाता है। बाकी प्रकृति के साथ भी उसी परस्पर पूरकता का निर्वाह करने से अस्तित्व में सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाता है, प्रकृति में परस्पर पूरकता प्रमाणित हो जाती है। आप अपने से हर बार पूछ के देख लीजिए, समाधान चाहिए कि समस्या, समृद्धि चाहिए कि अभाव, अभय चाहिए कि भय, सहअस्तित्व चाहिए कि संघर्ष? उत्तर बहुत साफ है। क्रम भी यही दिखाई देता है। समाधान से अगर आदमी सुख शांति में नहीं सुनिश्चित किया है, अपनी सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचाना है, सुविधा और संवेदना में ही सुख ढूंढ रहा है, उसकी सुविधा की आवश्यकता ही तय नहीं होती, इसलिए समृद्धि का नंबर ही नहीं आता है। समाधान के बिना समृद्धि एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि समाधान के बिना अपने में सुख शांति नहीं है, सुविधा की आवश्यकता को पहचान नहीं पा रहे हैं, उस सुख शांति है नहीं, उसको सुविधा और संवेदना में ही ढूंढने जा रहे हैं। अधिक से अधिक भोग करके, अधिक से अधिक संग्रह करके, अनुकूल से अनुकूल संवेदना पाके सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि वो सुख निरंतर चाहिए, हर समय चाहिए, इसलिए सुविधा और संवेदना को ही अधिक से अधिक करने के प्रयास में हम लगे रहते हैं। वो तो पूरा नहीं ही होता है,
समृद्धि और हाथ से चली जाती, क्योंकि सुविधा की आवश्यकता ही तय नहीं होती। समाधान और समृद्धि के साथ जब परिवार जीता है, सुख शांति और समृद्धि के साथ जब परिवार जीता है, तो दूसरों की सुख शांति में सहयोगी होता ही है, पूरक होता ही है। इसलिए समाज में अभय का, विश्वास का वातावरण बन पाता है। तो समाधान और समृद्धि के साथ अभय सहज सहज। समाधान, समृद्धि और अभय के साथ ही प्रकृति में परस्पर पूरकता या सहअस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे से भयभीत हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बंदूक बनाने का, हथियार बनाने का बहुत सारा कार्यक्रम चलाते ही। तो राष्ट्र अगर एक दूसरे से भयभीत हैं तो मिसाइल बनाने का, रडार बनाने का प्रयास हम करते ही हैं, कोशिश में हम लगे ही हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जो रिसोर्सेज लगते हैं वो तो प्रकृति से ही लगता है। युद्ध के लिए टैंक बनाइए, उसका लोहा भी तो प्रकृति से ही आता है, कहाँ से आता है? वहाँ जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, जो एरोप्लेन यूज़ हो रहा है, जो फाइटर जेट यूज़ हो रहा है, उसमें जो अरबों खरबों की संपदा लग रही है, वो पैसा भी आदमी का ही जाता है और वो रिसोर्सेज भी प्रकृति से ही आता है। तो प्रकृति की साथ परस्पर पूरकता से जीने का काम, प्रकृति के सदुपयोग का काम हम तभी कर सकते हैं ठीक से जब परस्परता में अभय का, विश्वास का वातावरण हो। ये अभय और विश्वास का वातावरण नहीं होता तो सदुपयोग भी हम नहीं कर पाते अपने संसाधनों का, क्योंकि बहुत सारा सदुपयोग युद्ध में, झगड़े में, लड़ाई में, मारपीट में, एक दूसरे के आक्रमण से बचने में चला जाता है। ये बात ठीक है? देख सकते इतने को? कोई कठिनाई तो नहीं? ठीक है। व्यवस्था के बारे में एक सिंपल सी बात ये लिखी है कि व्यवस्था कोई जबरदस्ती थोपने की चीज नहीं है, बल्कि मूलतः व्यक्ति जैसा होना ही चाहता है, व्यवस्था उसके लिए अनुकूलता देती है, उसके लिए साधन प्रदान करती है, अवसर देती है, प्रोत्साहन देती है, संरक्षण देती है, मार्गदर्शन देती है। तो आदमी समाधान पूर्वक जीना ही चाहता है, आदमी समृद्धि पूर्वक जीना ही चाहता है, मानव अभय पूर्वक जीना ही चाहता है, मानव परस्पर पूरकता के साथ, सहअस्तित्व के साथ जीना ही चाहता है। जैसा जीना हम चाहते ही हैं, व्यवस्था का रोल यह है कि उसके लिए अनुकूलता प्रदान करे। हम समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं, उसके लिए अवसर उपलब्ध हो। हम समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं, उसके लिए अवसर, साधन, प्रोत्साहन, संरक्षण, मार्गदर्शन उपलब्ध हो। हम अभय और सहअस्तित्व के साथ जीना चाहते हैं, उसके लिए ही अनुकूलता प्रदान करना व्यवस्था का रोल है। और व्यवस्था की मूल इकाई परिवार है, धीरे धीरे पूरा समाज है, और अंततोगत्वा ये विश्व परिवार तक व्यवस्था का रोल दिखाई देता है। उसमें आज के दिन देखिएगा तो राज्य और राष्ट्र, ये दो जगह की व्यवस्था, और उसमें भी मुख्य रूप से राष्ट्र की व्यवस्था संविधान के रूप में हमारे आपके ऊपर लागू होती। तो जीने की जगह पर यह दिखाई देता है कि एक सार्थक व्यवस्था, एक मानवीय व्यवस्था आदमी को जबरदस्ती किसी भेड़ चाल में एक तरफ हाँकने का डिजाइन नहीं है, दबाव देने का डिजाइन नहीं है, जबरदस्ती मनवाने का डिजाइन नहीं है, दूसरे के ऊपर शासन करने का डिजाइन नहीं है, बल्कि मूलतः जैसा हम होना ही चाहते हैं वैसा होने में सहयोग प्रदान करने का काम व्यवस्था करती है। चाहे वो परिवार की व्यवस्था हो, चाहे ग्राम की व्यवस्था हो, चाहे राज्य की व्यवस्था हो, चाहे राष्ट्र और विश्व की व्यवस्था हो। भैया पीछे जी एक क्वेश्चन है। जी श्योर। आपने जैसे बोला कि अगर हमारी इच्छा कुछ सही करने की होती है तो वातावरण अनुकूलित हो जाता है, ठीक है, पर कभी कभी ऐसे कोई क्राइम वगैरह हो रहे हैं
तो ऐसे क्राइम करने की इच्छा उस मानव के अंदर जागृत तो होती है, तो वो क्राइम तो हो ही जाता है। तो वो उस तरीके में वातावरण कैसे उसके लिए अनुकूलित हो सकता है? ये जो बच्चा क्राइम करता है ना, कोई भी, ये 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के बाद क्राइम करता है कि नहीं? तो 2 साल 3 साल के बच्चे घूम रहे हैं, 8-10 साल के बच्चे घूम रहे हैं, ये बेचारे क्राइम नहीं करते। ये क्राइम के नाम पर इतना ही करते होंगे कि कहीं किसी के हाथ से 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा खा जाते होंगे, किसी की 2 पेंसिल उठा लेते होंगे, इतना ही तो क्राइम करते होंगे। अगर क्राइम कहें भी तो कुछ अच्छा लग गया तो किसी का 2 पेंसिल उठा लिए या किसी के हाथ की 2 चॉकलेट खा गए। बाकी जो सारा क्राइम हम कर रहे हैं वो तो 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र के बाद कर रहे हैं। प्रश्न यही बनता है कि समाज के रूप में सार्थक शिक्षा संस्कार देने के नाम पर हमने वो 12 साल, 15 साल, 18 साल क्या किया? क्या हम शिक्षा संस्कार की एक सार्थक व्यवस्था बना सकते हैं ताकि हर व्यक्ति जो मूलतः समझदार और जिम्मेदार होना ही चाहता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही चाहता है, वो जीने के योग्य भी वो बन जाए? जो चाहना है ही उसमें समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की, वो योग्यता भी उसमें विकसित हो जाए, उसके लिए सार्थक शिक्षा संस्कार देने की जरूरत है कि नहीं है? और मेरी दृष्टि में तो समाज में जितने ज़्यादा अपराध दिखाई देते हैं वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का उतना फ्लॉ है, उतना असफल होने का निशानी है। और जब मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कह रहा हूँ तो ये कोई मैं स्कूल, कॉलेज और टीचर को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ उसके लिए। शिक्षा की पहली जगह तो परिवार है, शिक्षा की दूसरी जगह स्कूल कॉलेजेस है, और उसमें सिर्फ टीचर ही नहीं है, शिक्षा की वस्तु क्या दे रहे हैं वो भी है, उसका विधि प्रक्रिया प्रोसेस क्या है वो भी है, उसमें आप इवेलुएट कैसे करते हैं लोगों को वो भी है, और तीसरा समाज में जो संस्कृति सभ्यता के रूप में हम दे रहे हैं, मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में, मोबाइल में, ये सब कहीं ना कहीं उस शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। देखना चाहिए हम सबको कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ठीक करने का काम करते हैं तो एक बच्चा समझदार और जिम्मेदार बन के उभरता है कि नहीं। दूसरी भाषा में हमको ऐसे देखना चाहिए कि ये बच्चा गलती करना सीख कहाँ से रहा है, वो बीज आ कहाँ से रहा है। आपको दिखेगा इन्हीं में से कोई ना कोई जगह है जो वो बीज दे रहा है। आगे चले तो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया के सफल होने से हर व्यक्ति में समाधान हो पाता है, हर व्यक्ति में समझदारी हो पाती है। इसी तरह से न्यायपूर्वक जब हम जीते हैं ना, दूसरे मनुष्य के साथ जब हम न्यायपूर्वक जीते हैं तो परस्परता में अभय सुनिश्चित हो पाता है। न्याय के बदले हम अन्याय करते हैं तो परस्परता में भय होता है। बाकी प्रकृति का भी हम संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग के रूप में उसकी सुरक्षा करते हैं तो प्रकृति में परस्पर पूरकता प्रमाणित हो पाती है, सहअस्तित्व प्रमाणित हो पाता है। तो हमारे न्यायपूर्वक जीने से मानव मानव संबंध में अभय हो जाता है। प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करने से वो सहअस्तित्व सुनिश्चित हो जाता है, वो परस्पर पूरकता हो जाती है। स्वास्थ्य संयम की ठीक ठीक समझ होने से हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख पाते हैं और सुविधा की आवश्यकता को भी ठीक ठीक पहचान पाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से सुविधा की आवश्यकता पहचानी जा सकती है। मन को सुखी करने की दृष्टि से किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं पहचानी जाती। शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से सुविधा की जरूरत पहचानी जा सकती है। सम्मान और पहचान पाने की दृष्टि से किसी सुविधा की कोई आवश्यकता तय नहीं हो पाती। तो स्वास्थ्य संयम की जितनी हमारी समझ होती है, हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान पाते हैं। उत्पादन कार्य के सफल होने से हम उन सुविधाओं का उत्पादन भी ठीक ठीक कर पाते हैं, उत्पादन भी ठीक ठीक कर पाते हैं। तो स्वास्थ्य संयम की जगह से हमने सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान लिया
उत्पादन कार्य से हम उन आवश्यकताओं का उत्पादन भी कर पाते हैं। विनिमय कोष से जिन सुविधाओं का हमने आज उत्पादन किया लेकिन कल भी हमको चाहिए, कोष से वो हो जाता। जैसे गेहूं आज उगाए हैं, साल भर उसको खाएंगे। चावल आज उगाए हैं, साल भर उसको खाएंगे। तो कोष में इकट्ठा रखने से वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती। विनिमय से ये होता है कि जिन सुविधाओं का हम सीधा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, कोई और उत्पादन कर रहा है, वहाँ भी हमारा आदान प्रदान सटीकता से हो जाता है। तो इन पांचों आयामों के सुनिश्चित होने से समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के रूप में जो लक्ष्य हमने पहचाना था, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है। शिक्षा संस्कार के सफल होने से हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित हो जाता है। उत्पादन कार्य, स्वास्थ्य संयम और विनिमय कोष, इन तीनों के सफल होने से हर परिवार में समृद्धि हो जाती है। इतने के साथ जब हम न्यायपूर्वक जीते हैं तो अभय हो जाता है। इन सब के साथ जब हम प्रकृति का भी संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग कर देते हैं तो प्रकृति में परस्पर पूरकता, अस्तित्व में सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। तो समाज की जगह से करने का काम क्या है देखिएगा, तो इन व्यवस्था के 5 आयामों को पहचान करके उसमें सार्थक भागीदारी करने की जगह है। करने का फल क्या होगा, तो हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति या अस्तित्व में सहअस्तित्व और परस्पर पूरकता, ये उसका फल होगा। फल चाहिए तो फल की सिर्फ आकांक्षा या अपेक्षा करने से फल नहीं मिलता है। जिस कर्म से वो फल आता है वो कर्म करना होता है। तो हम अगर आम का फल चाहते हैं तो चाहने भर से आम का फल नहीं मिलता। आम का बीज लगाना होता है, उसको खाद पानी देना होता है, उसको अनुकूलता देनी होती है, गाय बकरी चर न जाए उसका इंतजाम करना होता है। ये सारा करेंगे ना तो आप नहीं चाहेंगे तब भी फल मिलेगा आपको। आप नहीं चाहेंगे तब भी फल मिलेगा आपको। अगर आपने बीज लगाने का काम किया है, उसको खाद पानी हवा ठीक से मिला है और आपने उसको बाकी सुरक्षा दे करके बड़ा होने दिया है, ना चाहते हुए भी फल मिलेगा। उल्टा भी उतना ही सत्य है कि खूब चाहें आप कि बढ़िया आम का फल मिले, बीज ना लगाएं, खाद पानी ना दें, उसका सुरक्षा का काम ना करें, जिंदगी भर चाहते रहेंगे, एक आम का फल नहीं मिले। तो अगर समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी फल चाहिए हमको, तो उसके लिए व्यवस्था के इन आयामों को पहचान करके उसमें सार्थक भागीदारी करने की, और ये व्यवस्था शुरू हो जाती है अपने परिवार से ही। अपने परिवार से ही ये 5 आयामों में भागीदारी का काम सुनिश्चित हो सकता है। धीरे धीरे हम उसको परिवार समूह में कर सकें, ग्राम में कर सकें, शहर में कर सकें, राज्य में कर सकें, राष्ट्र में कर सकें, अंततोगत्वा पूरी धरती तक उसको करने की ज़रूरत है। क्योंकि पड़ोसी बीमार और परेशान होगा तो उसकी छींटें हम तक पड़ेंगे। अपना घर हमने खूब साफ कर लिया हो, बगल में कचरा है, हवा के साथ उड़ के उसकी बदबू अंदर आएगी ही और कुछ कचरा भी अंदर आएगा। क्योंकि ये धरती एक ही है जिसको हम शेयर कर रहे हैं, ये हवा पानी मिट्टी एक ही है जिसको हम साझा कर रहे हैं। तो आज के दिन तो ये दिखता है कि अगर बचेगी तो पूरी धरती बचेगी, डूबेंगे तो सब डूबेंगे। अब वो स्थिति नहीं है कि कोई कबीला किसी एक जंगल में जी रहा है जिसको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आज इतना जुड़ गए हैं हम एक दूसरे के साथ, इतना कॉमन प्रोग्राम और गोल हम सबका हो गया है कि या तो सब साथ में ठीक से जी पाएंगे या सब साथ में डूबेंगे। तो हम बेसिकली एक ही नौका में सवार हैं। आप छेद करें कि हम छेद करें,
डूबेंगे तो सारे, डूबेंगे तो सारे। जी माइक दे दीजिए प्लीज। ये बात कई बार मैंने सुना है कि हम डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे। हम डूबे हुए ही हैं। थोड़ा कम डूबे हैं अभी, अभी हम कम से भीगे हुए ही हैं, हम गिरे हुए ही हैं। समस्याओं में डूबने भीगने घिरने की बात है, ना कि व्यापक में। व्यापक में डूबे भीगे गिरे होने में प्रॉब्लम नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि हम समस्याओं में डूबे भीगे गिरे हैं आज के दिन, और उस दलदल में और धंसते जा रहे हैं। अभी कम से कम ये हालत तो है कि धरती बची हुई है, लेकिन पिछले 50, 60, 70 सालों में स्थिति को देखेंगे, हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है, पानी दिनों दिन खराब होता जा रहा है, परस्परता का अविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हत्या की, बलात्कार की, भ्रष्टाचार की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये जो समस्याओं के दलदल में हम डूबते चले जा रहे हैं ना, तय ये करना है कि ये डूबना है कि इसको समाधान में सुनिश्चित करना है। धरती डूबती जा रही है तो सही है, अभी प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या समाधान हम करें, क्या कॉन्ट्रीब्यूट? इन 5 आयामों में से जिस जिस आयाम में जहाँ जहाँ समझ में आता हो, सार्थक भागीदारी। न्याय में भागीदारी जितना करते हैं, मनुष्य के व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं हल होती जाती हैं। स्वास्थ्य संयम में जितना सार्थक भागीदारी करते हैं, शरीर के स्वस्थ होने का और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाती है। उत्पादन और विनिमय को जितना सटीकता से हम भागीदारी करते हैं, हर आदमी की सुविधा की आवश्यकता के पूरा होने का प्रावधान बनता जाता है, और वो भगदड़ खत्म होती चली जाती है। और ये सब के आधार के रूप में शिक्षा संस्कार में जितना सार्थक भागीदारी हम करते हैं, ऐसे जीने की मानसिकता रखने वाले और योग्यता रखने वाले मनुष्यों का निर्माण होता है। तो अगर मूल भागीदारी देखेंगे तो ये दिखता है कि मानसिकता बदलने की दृष्टि से शिक्षा संस्कार पर काम सबसे मौलिक काम है। ठीक है, जो 5 मिनट का समय है उसमें मैं शिक्षा संस्कार पर थोड़ी बात कर देता हूँ। शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया भी बहुत सहज है, क्योंकि वात्सल्य के भाव के तहत जो अपनी अगली पीढ़ी के रूप में हम ठीक ठीक समझे होते हैं, माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में हम ठीक ठीक समझे होते हैं, अगर हमको अगला बच्चा अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है तो उसको समझने जीने में हम सहयोग करना ही चाहते हैं। तो वात्सल्य के भाव के तहत हम समझाना चाहते ही हैं, अगले को सहयोग करना ही चाहते। एक छोटे बच्चे को भी देखेंगे ना, तो एक छोटा बच्चा समझना ही चाहता है। किसी भी चीज को वो देखता है, उससे जुड़ा हुआ 10 सवाल पूछता ही है। छोटा से छोटा बच्चा भी जब कामों को करने जाता है, धीरे धीरे अपने हाथ से खुद से करना ही चाहता है। आप उसको करके भी देने जाएंगे तो कहता है नहीं, हम खुद से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा परावलंबी होकर के, दूसरों पर निर्भर होकर के, परतंत्र होकर जीना चाहता है। छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछिए, समझदार होना चाहते हो कि बेवकूफ, उत्तर दे दे। और जिस चीज पर भी उसकी नजर जाती है, बड़ों को वो जो जो करते देखता है, कहीं ना कहीं उसको करने की प्रवृत्ति रखता ही है, उसके लिए प्रयास करता ही है। इसीलिए बच्चा इतनी आसानी से भाषा को सीख लेता है। आपके यहाँ का हर बच्चा गुजराती बोल लेता है। हमारे यहाँ का बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा होगा जिसको गुजराती आती होगी, यूपी के 17 करोड़ की आबादी में। इतना सहज है
एक बच्चे का बड़ा होते हुए अपने से बड़ों की चीज सीख लेना। तो कोई शिक्षा संस्कार जबरदस्ती थोपने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हम देना ही चाहते हैं, बच्चा लेना ही चाहता है। तो वो परस्पर पूरकता है हमारी एक दूसरे के बीच। समस्या कहाँ है? दो जगह पे समस्या है। या तो शिक्षा की वस्तु के रूप में ये जो स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व में व्यवस्था को समझने की बात है, हम इस पूरे आयाम पर बात नहीं करके उसको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय सीख ले तो लगता है उसी से जिंदगी सफल होगी। ये जो एक बच्चे के जीने का पूरा आयाम है, अपने में वो जी रहा है, पेरेंट्स के साथ जी रहा है, मित्रों के साथ जी रहा है, समाज में कुछ चीज़ों को कर रहा है, वो सब में जीता हुआ बच्चा जिन जिन समस्याओं को जूझ रहा है, अगर उसका समाधान हम नहीं दे रहे हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ वो गणित के 4 प्रश्न, विज्ञान के 4 प्रश्न और हिंदी अंग्रेजी के 2 उत्तर रट करके लिख दे, तो हमको रुक के देखने की ज़रूरत है कि हम शिक्षा के नाम पे दे क्या रहे हैं। अपने घर के बच्चों के साथ भी हमारा दुखद दुर्भाग्य आज के दिन ये हो गया है कि ज़्यादातर समय हमारा संबंध नंबर पूछने को लेकर के, पढ़ाई कैसी चल रही है को लेकर के, और उसमें क्या नंबर नहीं आ रहा है तो कैसे आ सकता है उसको लेकर चर्चा होती। हम किसी जगह पर इसको सुनने का भी जगह नहीं रख पाते हैं कि बच्चा इन सब संबंधों में जी रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है, उसको कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ समस्या हो रही है, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, वो जिन परिस्थितियों में भी जी रहा है वहाँ सब स्मूथ है भी कि नहीं, उसकी अपनी रुचियाँ क्या हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका मन किन कामों को करने में अच्छा लगता है, उसको कहाँ सुख दिखाई दे रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, उसको अपने लिए क्या महत्वपूर्ण लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, इन बेसिक मुद्दों पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अपना एक एजेंडा लेकर के उसको अप्रोच करने का काम करते हैं। फिर जब वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमको लगता है बच्चा नालायक हो गया। हमको ये दिखना जरूरी है कि शिक्षा की पूरी वस्तु तो स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था को समझ। हम इतने बच्चों से जब भी बात करके देखते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसको संबंधों की समस्या नहीं दिखाई देती। किसी को स्कूल में टीचर से समस्या होती है, किसी को अपने साथ में जुड़े हुए बच्चों से समस्या होती है, किसी कोई बुलिंग का शिकार हो रहा होता है, कोई रैगिंग का शिकार हो रहा होता है, कोई घर लौट करके आए तो अपने पेरेंट्स के साथ परेशान होता रहता है, कोई पेरेंट्स नहीं भी परेशान कर रहे हो तो पेरेंट्स आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सुबह से शाम तक, उसको देख देख के परेशान होता रहता है। उन समस्याओं का समाधान अगर उसको हम नहीं देंगे तो वो डॉक्टर तो बन सकता है, इंजीनियर तो बन सकता है, एक तो वही बनने में भी कठिनाई होगी क्योंकि आधा मन कहीं और उलझा हुआ है, तो आधा ही मन तो लगेगा यहाँ। आपको ही अभी 10 चीज़ों की चिंता हो, परेशानी हो, आपका आधा ध्यान हमारी बात सुनने पे होगा, आधा ध्यान अपनी चिंता और परेशानी में रहेगा। तो एक बच्चे की जगह से भी उसका डॉक्टर, इंजीनियर बनना भी मुश्किल हो जाता है अगर वो 10 समस्याओं में उलझा हुआ है। और अगर जीने के पूरे आयाम की शिक्षा नहीं देंगे उसको, तो डॉक्टर तो बन सकता है, इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन 2 चीज़ें नहीं होगी। एक, वो सुखी समृद्ध नहीं होगा, परेशान रहेगा, परेशान करेगा। दूसरा, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाने के बावजूद भी उस पेशे के साथ न्याय करेगा, उसको ईमानदारी से करेगा, और जिन लोगों के साथ जी रहा है उनके साथ ठीक से जी लेगा, इसकी कोई संभावना नहीं, इसकी कोई संभावना। आखिरी बात जो मैं इस शिक्षा की विधि के संदर्भ में कहूँगा वो ये कि ये शिक्षा संबंध पूर्वक स्नेह के भाव से दी जाने वाली प्रक्रिया है, न कि विरोध और दबाव पूर्वक। विरोध और दबाव पूर्वक आप किसी से कुछ करा भी ले जाते हैं ना, वो बच्चा उतनी ही देर करता है जब तक आप उसके सामने खड़े हैं। जैसे ही आप थोड़ा साइड होंगे वो अपनी कथा में चलना शुरू कर। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका भय कम होता चला जाएगा,
उतना आपकी बात मानना मना कर देगा और सामने रह के भी नहीं करेगा उसको। उसी तरह से शिक्षा कोई दूसरे से जबरदस्ती बात को मनवाने की प्रक्रिया नहीं है, उसके सवालों को चुप करा के, उसका मुंह बंद करा के अपनी मान्यता उसके ऊपर थोप देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जितने तरह के भी उसके प्रश्न हैं वो सब प्रश्नों को सुन करके तर्क संगत ढंग से उत्तरित करने की आवश्यकता है और उसको भी जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करने का अवसर देने की जरूरत है, क्योंकि वो जांच परख करके, प्रयोग व्यवहार करके ही बच्चा तृप्त होता है, ना कि सिर्फ मान करके तृप्त होता है। आप अपने से ही इस बात को पूछ के देखिए कि आपको सिर्फ चीज़ों को मान लेने से तृप्ति हो जाती है या आप उसको जानना समझना भी चाहते हैं। और ये जो आखिरी बात लिखी है ना कि एक बच्चा अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन से शुरू करता ही है। छोटा बच्चा वैसे ही चलता है जैसे हम चलते हैं, वही खाता है जो हम खाते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनने का शौक रखता है जैसा हम रखते हैं। आप घर में श्रृंगार करते हैं तो बच्चा वो भी करना सीखता है, आप नहीं करते हैं तो वो उसके बिना रहना सीख लेता है। तो अनुसरण, अनुकरण और आज्ञा पालन से चलते हुए ये जरूरी है उसके लिए कि धीरे धीरे सही की सूचना प्रस्ताव की विधि से उसको मिले और उसको जांच परख और प्रयोग व्यवहार करने का अवसर मिले। तो सही के नियमों को हम ठीक ठीक उसको बता पाते हैं, तो ये अनुशासन की प्रक्रिया है। अनुशासन का मतलब है व्यवस्थित होकर के जीने के नियमों को हम उसको ठीक ठीक बता पाते हैं, उसके फल परिणाम पर उसके साथ चर्चा कर पाते हैं, उससे जुड़े जितने प्रश्न हैं उसको तर्कसंगत ढंग से उत्तरित कर पाते हैं और लास्ट में उसको जांच परख और प्रयोग व्यवहार करने का अवसर देते हैं। वो सबसे वो उस बात को सही पाता है तो अब ये उसकी अपनी स्वीकृति बन जाती है, अब वो स्वानुशासित हो जाता है, अब उसको अनुशासन की भी जरूरत नहीं। अनुशासन में कहीं ना कहीं दूसरे की प्रेरणा है, दूसरे का मार्गदर्शन है। स्वानुशासन में अब वो खुद ठीक जीता है और दूसरों को ठीक जीने की प्रेरणा दे पाता है। इस रूप में अब वो व्यवस्था का स्रोत हो जाता है, जहाँ भी जाएगा वहीं वातावरण बना पाएगा। तो स्वानुशासन के साथ जीता हुआ व्यक्ति गलत वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि गलत वातावरण में भी खुद ठीक जीते हुए दूसरों को ठीक जीने की प्रेरणा दे पाता है। तो वातावरण से, गलत वातावरण से प्रभावित होने के बदले गलत वातावरण को सही में बदलने के लिए प्रेरित कर पाता है। विचार किया जाए। लौट के हम 2:30 बजे मिलेंगे तो व्यवस्था के कुछ और आयामों पर जो बच गए हैं उस पर बात करेंगे। सभी को हमारा नमस्ते।